Hello students, in this video we will solve exercise 2.2 of linear equation in one variable. This is class 8th topic and in this video we will only solve first 10 problems of exercise 2.2. First question. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? So, the main thing is how we will proceed this problem. So, let the number be x. Now, what they have written, if we will subtract 1 by 2 from a number. So, x minus 1 by 2 and multiply the result by 1 by 2, you get, what does it mean? It will be equal to, you get, it will be equal to 1 by 8. So according to question, what is the equation? X minus 1 by 2. Subtract 1 by 2 from a number. Number is x. So we have subtracted 1 by 2 from a number and then multiplied it by 1 by 2. But we have got 1 by 8. So अब इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए इस पूरे को एंड देन आगे बढ़िए, या फिर स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए. हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले यहाँ पे 1 बाई 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन. वहां जाएगा तो डिवाइड, और हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मल्टीप्लाई. So it will be x minus 1 by 2 is equal to 1 by 8 into 2 by 1. Then it will be 1 by 4. यहाँ पे ये माइनस है तो वहां जाएगा तो प्लस. अगर हम इसे ट्रांसपोज करेंगे RHS में तो ये क्या बन जाएगा? प्लस. So the next step will be x is equal to 1 by 4 plus 1 by 2. ये माइनस यहाँ जाके क्या हो गया है? प्लस. सो 4 और 2 का LCM 4, यहाँ पे 1 ही रहेगा. 2 में क्या इंटू करेंगे कि 4 आ जाए? 2. तो ऊपर भी क्या इंटू करेंगे? 2. 1 2 जा 2. 1 plus 2 3. So x will be equal to 3 by 4. So the number will be 3 by 4. Next question. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? So let the breadth of the pool be b meter. हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है ABCD जिसकी ब्रेथ है b, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी होनी चाहिए? लेंथ इज, क्या बोला है? 2 मीटर मोर. मोर मतलब प्लस. 2 मीटर मोर देन, किससे ज्यादा है? ट्वाइस. ट्वाइस किसका? ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ब्रेथ का ट्वाइस. सो लेंथ विल बी 2 plus 2b. अब यहाँ पे इन्होंने पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर. But we know the formula for perimeter of rectangle. It is 2 into L plus B. Now what is your length? 2 plus 2B. And what is your breadth? B. हमने simply यहाँ पे values put कर दी हैं. 2B plus B is 3B. Now, according to question, this perimeter is 154. Perimeter is 154. 4 यहाँ पे प्लस है, ट्रांसपोज होगा तो माइनस. सो 6b is equal to 154 minus 4. So 6b is equal to 150. Now 6 और b के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन. और 6 का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में, so it will become division. So b is equal to 150 by 6. So b is equal to 25. Therefore your breadth is 25 meter and length कितनी हो जाएगी? 2 plus 2 into breadth. But what is your breadth? 25. So
2 plus 2 into 25. It will come out to be 52 meter. Now third question, the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात हो रही है आइसोसेलेस ट्राइंगल की. आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. सो द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स भी x सेंटीमीटर. अगर ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x. एंड बेस इज 4 by 3 centimeter. This is given. Now perimeter is 4 2 by 15. Now 4 15s are 60. 60 plus 2, 62 by 15 centimeter. Next, sum of all sides is perimeter. Sum of all sides. So AB plus BC plus CA is 62 by 15. What is your AB? X. What is your BC? 4 by 3. What is your CA? X is equal to 62 by 15. X 2x plus 4 by 3 is equal to 62 by 15. Now 4 by 3 यहाँ पे प्लस में है, वहां अगर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस. सो 2x is equal to 62 by 15 minus 4 by 3. सॉल्व करेंगे इसे. 2x is equal to 42 by 15. अब 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन. 2 अगर हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन. So x is equal to 42 upon 15 into 2. X is equal to 14 by 10. Therefore, length of equal sides is 1.4 centimeter. Fourth question, sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the number. इसमें बोला गया है आपके पास एक नंबर है, दूसरा नंबर उससे 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, और वो जो दो नंबर है उनका सम कितना है 95. सो स्टार्ट. लेट द फर्स्ट नंबर बी x. तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि वो एक्सीड है, ज्यादा है, दूसरा नंबर ज्यादा है 15. सो द सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 15. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए 95. x plus 15 is 95. Now x plus x is 2x. 2x plus 15 is equal to 95. यहाँ 15 प्लस में है, ट्रांसपोज होगा तो माइनस. So 2x is equal to 95 minus 15. So 2x is equal to 18. 2 and x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन. ट्रांसपोज करेंगे तो डिविजन. So x is equal to 40 upon 80 upon 2. So it will comes out to be 40. So the first number is 40. Second number will be 40 plus 15, that is 55. Fifth is two numbers are in the ratio 5:3 if they differ मतलब minus. Subtraction. क्या है दोनों का subtraction? 18. What are the numbers? अब सबसे पहले एक बात ध्यान देनी है, जहां भी आपको रेशो की बात होती है तो पहला नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा नंबर 3x हो जाएगा. सो द फर्स्ट नंबर इज 5x, सेकेंड नंबर विल बी 3x. अब क्या बोला है इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस. सो 5x minus 3x is equal to 18. Now 5x minus 3x is 2x. 2x is equal to 18. Now 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होगा मल्टीप्लीकेशन. ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन. सो x is equal to 9. So the first number will be 5 into x. So x क्या आ गया हमारा 9. 5 into 9 which is 45. Second number will be 3 into 9 is equal to 27. Sixth, three consecutive integers add up to 51. 3 consecutive लगातार integers
ऐड करेंगे अगर उन्हें तो कितना आ जाता है 51. What are these integers? So let the first integer be x. अब क्या बोला इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये सब लगातार नंबर्स हैं. अब 2 लाने के लिए हमने 1 में क्या प्लस किया 1. 3 लाने के लिए 2 में क्या प्लस किया 1. तो अगर हम 1 1 प्लस करते रहते हैं तो हमें आगे वाली टर्म मिल जाती है. सो इसी तरीके से सेकेंड नंबर के लिए x में क्या प्लस करना पड़ेगा 1. सो सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1. थर्ड नंबर के लिए x प्लस 1 दैट इज x प्लस 2. अब इन्होंने क्या बोला है ऐड करेंगे इन सबको हम क्या करेंगे ऐड. सो x प्लस 1 x प्लस 2. आंसर कितना आ गया 51. Now x plus x will be 3x and 1 plus 2 will be 3. 3x plus 3 is equal to 51. Plus 3 transpose minus 3. 3x is equal to 51 minus 3 that is 48. Now 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लिकेशन. Transpose division. X is equal to 48 upon 3 that is 16. So the first number is 16. Second 16 plus 1 17. Third number 16 plus 2 18. Seventh the sum of 3 consecutive यहाँ पे भी 3 consecutive लगातार multiples of 8 ये चीज नहीं ऐड हो गई है multiples of 8 is 888. Find the multiples. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. इन्होंने बोला है the numbers are multiples of 8. For example 8 की टेबल 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें तो ये तीनों 8 के मल्टीपल्स हैं. फर्स्ट 8 में 8 1s are 8. 8 में क्या मल्टीप्लाई किया 1. 16 लाने के लिए 8 में क्या मल्टीप्लाई किया 2. 24 लाने के लिए 8 में क्या मल्टीप्लाई किया 3. तो हम हर जगह 8 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट हमें 8 का मल्टीपल मिल सके. फॉर एग्जाम्पल सो द फर्स्ट नंबर विल बी 8x. सेकेंड नंबर 8x plus 8. Third number 8x plus 8 that is 8x plus 16. अब according to question हमें बोला गया है इनका सम कीजिए. So according to question हमने तीनों का सम किया and क्या आ गया 888. Now 8x 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 it is 24x. 8 plus 16 24. यहाँ पे ये प्लस में है ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस. सो 24x is equal to 888 minus 24. So 24x is equal to 864. x will be equal to 864 divided by 24. कैसे आएगी डिवाइड में क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन. सो x will be equal to 36. So the first number will be 8 into x that is 8 into 36 will be equal to 288. Second number will be 296. Third number will be 304. Eighth question. 3 consecutive integers. यहाँ पे भी 3 consecutive लगातार integers हैं. तो सबसे पहले हम let कर लेते हैं. Let the first number will be x. Second number will be x plus 1 and third number will be x plus 2. अब इन्होंने कंडीशन क्या बोली है such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively. इस respectively का मतलब होता है पहले वाले से 2 मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड वाले से 3 एंड लास्ट वन से 4 एंड देन हम उन्हें क्या करेंगे ऐड. तीनों को क्या कर देंगे ऐड. आंसर क्या आएगा 74. देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला वाला नंबर ये है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड नंबर ये है इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट वन ये है इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको देन ऐड कर देंगे और आंसर क्या आएगा 74.
So according to question, 2 into x plus 3 into x plus 1 plus 4 into x plus 2 is equal to 74. 2 into x, 2x. 3 into x, 3x. 3 into 1, 3. 4 into x, 4x. 4 into 2, 8 is equal to 74. Now 2x, 3x, 4x. When we will add all three, it will be 9x. 8 plus 3, 11. Now 11 अगर यहाँ पे एडिशन में है, ट्रांसपोज करेंगे तो subtraction. So 9x will be equal to 74 minus 11. 9x is equal to 63. Then x will be equal to 63 upon 9. So x is equal to 7. So the first number will be 7. Second number will be 7 plus 1, 8. Third number will be 9. Ninth one, the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. ध्यान दीजिए, रेशियो आ गया है. 4 years later, 4 साल बाद, the sum of their ages, उनकी ages का sum कितना हो गया है? 56 year. What are their present ages? So let the present age of Rahul, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है, जब रेशियो आता है तो पहले वाले की एज हो जाएगी 5x एंड सेकेंड वाले की 7x. So the age of Rahul will be 5x and the age of Harun will be 7x. Now 4 years later, मतलब 4 साल बाद, अगर आप देखें आपकी प्रेजेंट एज 14 है, 4 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 18. 14 प्लस 4. तो इसी तरीके से अगर राहुल की एज प्रेजेंट 5x है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 4. और हरुण की एज कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 4. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है अगर इन दोनों को ऐड करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 56. सो 5x प्लस 4 plus 7x plus 4 is equal to 56. 5x plus 7x, 12x. 12x plus 8 is equal to 56. Now again, यहाँ पे plus 8 है. Transpose करेंगे तो minus 8. So 12x will be equal to 48. 12 और x के बीच में कोई साइन नहीं है. Multiplication. Transpose करेंगे तो division. So x will be 4. So the age of Rahul will be 5 into 4. That is 20 years. अब guess कीजिए हरुण की एज कितनी हो जाएगी? 7 into 4. That will be 28 years. 10th one. The number of boys and girls in the class are in the ratio 7:5. ध्यान दीजिए फिर से रेशियो आ गया है 7:5. The number of boys की संख्या 8 more than the number of girls. Number of girls से 8 ज्यादा है. What is the total class strength? सबसे पहले तो याद ध्यान दीजिए यहाँ पे रेशियो दे रखा है तो पहले दिया है बॉयज. सो बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 7x. एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गर्ल्स? 5x. अब इन्होंने बोला है नंबर ऑफ बॉयज. सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 8 मोर है यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है. 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. अच्छा बताइए नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 7x. करेक्ट. और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 5x. सो 7x इज इक्वल टू 8 प्लस 5x. 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. हमें हमेशा ध्यान देना है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिएबल एक साथ करने हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल x और x एक साथ करने के लिए हमने यहाँ पे +5 को वहां पे ट्रांसपोज किया LHS में. सो वहां पे वो माइनस हो गया. 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. 2x इज इक्वल टू 8. अब 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है सो मल्टीप्लीकेशन. ट्रांसपोज होगा तो डिवीजन. सो x विल बी इक्वल टू 4. So number of boys will be 7 into 4 is equal to 28 and number of girls is equal to 5 into 4, 20. So total strength will be 28 plus 20 that is equal to 48. So for next part, please like, share and subscribe. Thank you.